Hey guys, Ashish Chaudhary here. So we are going to talk about the power of 50 EMA. So yeah, let's swipe. Who am I? I am Ashish Chaudhary. I am swing trader and options buyer as well. I am NISM research analyst. So yeah, registration by CV and NISM is no way to be like guaranteed that the return to investors is gonna be like provided. So it is subjected all to the market risk, and read all the documents carefully before investing and do your own research. Okay. So yeah, what makes me unique? I am 3 years in the stock market with advanced knowledge and have the goal to make you guys the best trader. Lost 20 lakhs in 2022 choppy market. So I know what choppy market is, which is going on right now, and I have saved a lot of capital and I haven't made a mistake like I did like 2 years back. So went through learning curve because of my mentors I had like Mark Minervini, David Ryan, Vishal Malkan, P.R. Sundar, Oliver Kell, Stan Winston, and William O'Neill. I have read the books. The last one, William O'Neill, is like he has a book. I have read it. So I just like find him my mentor because he has helped me a lot. His book has helped me a lot. So my goal is to help you shorten your learning curve and give you the best criteria to trade either swing trading or options buying. So what style I apply? This is my style of trading. You can just take a screenshot of this. Okay. I do swing trading, I do index options, I do stock options, and I do future. Okay, so these are all my criterias of to trade, and I only live on this. I don't include or exclude any of this thing from outside or inside. So this is the only thing I follow. Okay. So what are we going to talk about here today? We are going to talk about 50 EMA and how they work in different indices and stock. So it can be used as stop loss and to figure out the market conditions. It can also help you filter out the bad performing stocks. Strategy of 50 EMA which I use in stock and Nifty options. Okay. So what is 50 EMA and how it helps trader to find out a certain scenario? The 50 EMA is a technical analysis tool used to identify the price trend by smoothing out price data over a 50 price like period time frame, placing more weight on recent price. तो इसका मतलब क्या है? तो जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो 50 डेज का लाइक सेम एवरेज निकाल के वो एक लाइक बताता है, आइडेंटिफाई करता है। बट जो ईएमए होता है वो रीसेंट प्राइस में ज्यादा जोर लगा के और पिछला वाला थोड़ा पीछे छोड़ के फिर वो उस पे जोर लगाता है। तो ज्यादा मतलब ज्यादा जो वेट रहता है वो रीसेंट प्राइस में रहता है। इसके लिए देखा होगा कि एसएमए और ईएमए आप दोनों लगाएंगे 50-50 तो दोनों में फर्क होगा बिकॉज अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है तो 50 ईएमए ज्यादा क्लोज होगा प्राइस से, 50 एसएमए थोड़ा दूर होगा बिकॉज वो रीसेंट प्राइस पकड़ता है। ओके। सो इन रीडिंग 50 ईएमए सर्व्स मल्टीपल पर्पस। फर्स्टली इट एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 50 ईएमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है जो कि हम बात करेंगे आगे। और उसमें अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो सही से सपोर्ट कर पाता है, और अगर मार्केट बेरिश होता है तो वो सही से रेजिस्टेंस भी कर पाता है, विच आई विल शो यू। और अगर उसके दोनों के बीच में है तो वो चॉपी मार्केट, वो एक चॉपी स्टॉक हो जाता है, तो उसको हमको एक अवॉइड करना होता है। ओके। सो लाइक जो जैसे कि लिखा हुआ है नेक्स्ट की प्राइस अबाउ 50 ईएमए सजेस्ट एंड ट्रेंड। मतलब अगर जो वैल्यू है, अगर जो प्राइस का जो वैल्यू है और वो 50 ईएमए के ऊपर है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, और जो 50 ईएमए के नीचे है उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ओके। तो अगर आप सिर्फ बुलिश ट्रेडर हो तो आपको जो 50 ईएमए के नीचे वाले स्टॉक को निकाल देना है, आपको उसको ट्रेड नहीं करना है। जो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ऊपर पे जो बेस बना रहा है, जो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, उस पे ही आप ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। So trader often overlook for price crossover with 50 EMA for entry and exit. So this is my nifty strategy. ये वाला जो देख रहे हो like trader often overlook for price crossover। जैसे ही 50 EMA को प्राइस काट के जाता है निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे with RSI crossing above 60, so that is my
एंट्री। तो ये प्राइस क्रॉसओवर हो गया। ये जैसे ही अगर समझो कि मेरे को अगर पुट ट्रेड करना है निफ्टी में, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्राइस ने 50 ईएमए को काट के नीचे जाता है विद आरएसआई क्रॉसिंग डाउन 40, दैट इज माय पुट ट्रेड। ओके। और उसका ही उल्टा ऊपर की ओर पे जैसे ही प्राइस 50 ईएमए को ऊपर से काट के जाता है एंड आरएसआई जो 60 को क्रॉस करता है, तो वो मेरा कॉल ट्रेड हो जाता है, वो मेरा लॉन्ग ट्रेड हो जाता है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज टू इंडिकेट मार्केट सेंटिमेंट एज वी एज अ ट्रेडर नो व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू सेट आउट। So, as a trader, if you don't know what does this mean, if you're a beginner, I must tell you that you should build the power of sitting out, because आज जो डेट चल रहा है 8 जनवरी, और आज जो मार्केट है वो एक completely volatile, completely डाउन ट्रेंड में, completely एक सेंटिमेंट खराब है मार्केट का। सो इट्स बेटर टू सिट ऑन कैश। एंड मैं तो 2 वीक से बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज ये मार्केट हम स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ओके। हम वो बात करेंगे उसके बारे में आगे कि मैं कैसे, मतलब जो मार्केट सेंटिमेंट है वो इंडिकेट करता हूँ, और वो भी सिर्फ 50 ईएमए से ही मेरे को मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे चूज करता हूँ कि ये मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक, बिकॉज एंड में ही पता है मैंने, like to know what the market sentiment is. It is particularly affected in market showing clear trend. तो अगर जो प्राइस वैल्यू है वो 50 ईएमए के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो स्टॉक तो एक चॉपी हो गया, वो स्टॉक एक साइडवेज हो गया, तो उसको हमको अवॉइड करना है। एंड सेम गोज टू इंडाइसेस ऑल्सो। अगर वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्मॉल कैप में भी वो अगर एक साइडवेज मोमेंट दिखा रहा है जो 50 ईएमए के ऊपर नीचे कर रहा है, तो हमको वो मार्केट में एक चॉपी मार्केट हो सकता है, तो हमको उसमें संभाल के रहना है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ट्रेंड की बात करते हैं पहले। तो ये जैसे कि स्टॉक है शक्ति पंप, जैसे कि इसने 850 के भाव से ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद रुका ही नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो उसने जो बेस जो बना रहा था, मतलब जो 50 लाइक अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उसने जो बेस फॉर्म किया है, उसने 50 ईएमए के ऊपर ही बेस फॉर्म किया है। वो 50 ईएमए के नीचे नहीं आया है। देख सकते हो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर उसने 850 रुपए में ब्रेकआउट देके वो डायरेक्ट छू गया 1340 रुपया। देखिए, तो ये जैसे मतलब 50 ईएमए के ऊपर है तो हमको बुलिश ट्रेड मिल गया। तो इसमें क्या लिखा है हमने, लाइक प्राइस कंसिस्टेंटली क्लोज अबाउ द 50 ईएमए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए क्लोज पूरा 50 ईएमए हो रहा है अक्टूबर से लेके नवंबर से लेके दिसंबर तक। उसके बाद उसने जो बेस फॉर्म करके जो ब्रेकआउट दिया है वो डायरेक्ट 60% अप इन 25 डेज। इट्स नॉट बैड, इट्स रियली ग्रेट इन दिस मार्केट एज वेल। तो जैसे कि द 50 ईएमए इज एंगल अपवर्ड, जैसे कि वो लाइक 50 ईएमए भी एक अपवर्ड एंगल पे जा रहा है, फ्लैट नहीं है, वो ऊपर की ओर पे जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी अगर शक्ति पंप में कुछ बेस फॉर्म होता है या फिर कुछ पुल बैक आता है तो हम वापस ये ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये ज्यादा ही ये स्ट्रेच हो गया है स्टॉक। तो अभी शायद थोड़े टाइम में रुक जाएगा और 50 ईएमए के क्लोज आएगा, फिर या फिर हम सपोर्ट लेगा 50 ईएमए का, या फिर पुल बैक देगा और 60 और लाइक 50 ईएमए एक वापस थोड़ा फ्लैट होके वापस एक अप ट्रेंड में जाएगा, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग टेम्पररी पुल बैक टू द 50 ईएमए। अब जैसे कि देख सकते हो 50 ईएमए बहुत दूर हो गया है, लाइक शक्ति पंप का भाव देखो और उसका जो जो 50 ईएमए वो देखो ज्यादा ही दूर हो गया है। तो थोड़ा वो स्लो हो जाएगा, थोड़े टाइम में वापस वो एक बेस फॉर्म करेगा। जैसे ही वो सपोर्ट लेगा 50 ईएमए का या फिर जो बेस जो पैटर्न बनाएगा हम उस पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो सो कंफर्म विथ इंक्रीज वॉल्यूम ऑन द बाउंस ऑफ 50 ईएमए, और या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है
अभी मतलब चलो ठीक है, ये तो एक फुल वन साइडेड स्टॉक भाग रहा है, बट जैसे ही वो थक जाएगा तो उसके बाद अगर कुछ बेस फॉर्म करने लगा तो आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ अलग एक कुछ इंडिकेटर जैसे कि मैकडी या फिर जैसे कि आरएसआई हो गया, तो आरएसआई आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि आरएसआई 60 को क्रॉस कर दिया तो वो एक पुलिस सेगमेंट में आ गया और वो एक ट्रेंड ही दे सकता है मूव, जैसे कि दे दिया है शक्ति पंप ने। तो ये जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझने को आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया ये लिखा हुआ है। सो अब भी डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। प्राइस कंसिस्टेंटली क्लोज बिलो द 50 ईएमए, जैसे कि देखते हो ये टाटा मोटर है, इसने हाई कुछ 1200-1300 का बनाया था और अभी ये 785 पे चल रहा है, जो कि 50 ईएमए के नीचे है। ठीक है। अब जैसे कि आप अगर शॉर्ट करते हो इसमें तो आप देख सकते हो, पहला तो ये पुल बैक दिया था जो 820 के इधर था, ठीक है। 820 के इधर दिया, बट ये 50 ईएमए के नीचे ही है। तो हम कुछ सिग्नल ढूंढेंगे जैसे कि आरएसआई क्रॉसिंग बिलो 40, या फिर कुछ चार्ट पैटर्न, या फिर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। जैसे कि ये आप देखोगे तो ये फ्लैग हो गया, नवंबर से लेकर दिसंबर तक उसने मतलब फ्लैग बनाया, एक फ्लैग पैटर्न जैसा किया और वापस ब्रेक डाउन दिया, और वापस वो 725 पे आकर हुआ, तो हमको एक शॉर्ट ट्रेड मिल जाता। तो वैसे ट्रेड्स मिल जाते हैं हमको। अगर 50 ईएमए के नीचे है तो हम सिर्फ शॉर्ट देखेंगे, और 50 ईएमए के ऊपर है तो हम सिर्फ कॉल देंगे, मतलब या फिर लॉन्ग देखेंगे, ठीक है। और अभी देखते हैं साइडवेज, दिस इज कंप्लीटली साइडवेज। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस? वी आर गोइंग टू कंप्लीटली अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। हमको स्मूथ मूवमेंट चाहिए, हमको स्मूथ प्राइस एक्शन चाहिए, या फिर वन साइड एक मतलब 50 ईएमए के ऊपर या फिर 50 ईएमए के नीचे, बस। ये जुप जैप हमको नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन दिस। फुकट का आपका लॉस होगा, फुकट का स्टॉप लॉस होगा, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग इन दिस sideways movement of stock or indices. Okay, so yeah, 50 EMA act as a floor in an uptrend, providing a level where the buying pressure tends to increase. जैसे कि देख सकते हो ये HAL है, ये लास्ट ईयर का है। ये मतलब फेब में आया, लाइक 50 ईएमए को छूने, वहां से बाउंस मारा, फिर अप्रैल के टाइम पे आया, वहां से बाउंस मारा, फिर इलेक्शन डे पे आया और वहां से बाउंस मारा। जैसे कि आप देख सकते हो, व्हेन द प्राइस पुल बैक टू द 50 ईएमए, बायर्स ऑफ्टन स्टेप इन, लाइक प्रिवेंटिंग फर्दर डिक्लाइन एंड पुशिंग द प्राइस बैक अप। तो इसका भी एक तरीका है चूज करने का। तो आप अगर वो स्टॉक बुलिश है या फिर अप ट्रेंड में है, या फिर आपको उसका सेंटिमेंट, वो स्टॉक का सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, समझ रहा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसके ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, या फिर वो एक स्मूथ मोमेंट में ऊपर की ओर पे जा रहा है, तो ही ये लाइक जो डायनामिक सपोर्ट ऑफ 50 ईएमए है वो तो ही काम करेगा। अगर आप मतलब ये वाले स्टॉक साइडवेज स्टॉक में आप करोगे 50 ईएमए सपोर्ट, तो वो काम नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा आपको। देखिए जैसे एचएल का देखिए, स्मूथ मोमेंट की तरह ऊपर जा रहा है, एक बार आया छू के ऊपर गया, एक बार आया छू के ऊपर गया, वापस आया छू के ऊपर गया, ठीक है। एंड सेम गोes to opposite resistance. See how the 50 EMA acts as a ceiling in the downtrend, providing a level where selling pressure tends to increase. देखिए अब ये स्मूथ है, ये 50 EMA के ऊपर ही नहीं जा रहा, एक बार गया नीचे, एक बार वापस गया नीचे, एक बार इधर नीचे, एक बार इधर नीचे, एक बार इधर नीचे। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट के ट्रेड्स मिल सकते हैं, बिकॉज ये चॉपी नहीं हो गई, ये इसकी तरह ये चॉपी नहीं है। ये जो एसआरएफ स्टॉक है ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, आप देखोगे ये 50 ईएमए के नीचे ही है, तो इसमें हमको शॉर्ट के ट्रेड्स ही ढूंढने हैं, ठीक है। When the price bounce towards the 50 EMA, sellers often step in, preventing further advance and pushing the price back down. Okay. So using as a stop loss, 50 EMA can use as a stop loss also. Let's talk about stop loss, a crucial part of trading. Now you might have heard of fixed stop loss when you set a specific price level to exit a trade. तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो,
आपका तो एक अमाउंट जो फिक्स स्टॉप लॉस वो हो जाता है, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, बट वो लंबे समय की चला चला। अभी अब ये जो स्टॉप लॉस है, दिस इज नॉट ओनली फॉर 50 EMA बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर 20 और 10 or like 25. It depends on what EMA you are using. So stop loss is not only for 50 EMA, it can also work on 12 like 20 EMA also. तो जैसे कि आपने एक ले लिया, आपने मतलब एक मतलब ट्रेड मिल गया, सेटअप मिल गया और आपने वो ट्रेड ले लिया विद द स्टॉप लॉस। तो अभी क्या करोगे, जैसे ही वो जो स्टॉक है, वो जो ट्रेड है, वो आपके साथ ऊपर चलने लगेगा, तो आप ये जो मूविंग एवरेज है 50 या फिर 20 या फिर 10, वो आप वो जैसे जैसे साथ जा रहा है, तो उसका आपका स्टॉप लॉस वो भी आपके साथ बढ़ता रहेगा। सो दिस इज अ लाइक डायनामिक स्टॉप लॉस। जैसे ही ईएमए अगर 900 पे आता है और जो भाव है वो 1000 पे चल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस आपका 900 पे लेके आओगे। जैसे ही वो 1000 का 1200 हो गया और आपका ये ईएमए हो गया 1050, तो आप स्टॉप लॉस 1050 पे लेके आओगे। So this can act as a trailing stop loss. Think of it as a trailing stop that follow the price, giving your trade room to breathe while protecting you from real reversal. In an uptrend, your stop loss trails below the rising of 50 EMA. ठीक है, तो जैसे तो ये जो है ना, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बहुत सही काम आता है। ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही आपने एक फिक्स स्टॉप लॉस हो गया, आपका ट्रेड आपके साथ चल गया, तो आपने आपका ट्रेड वो ब्रेक इवन पे लेके आ गए। उसके बाद जैसे जो मोमेंट मिलता है, जो ब्रेक इवन के बाद मोमेंट मिलेगा, उसमें आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ओके, so market condition through 50 EMA. A key principle I've learned is to avoid trading the nifty small cap mid cap when they are trading below their 50 EMA. तो अगर निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप ये तीनों इंडाइसेस अगर 50 EMA के नीचे है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन स्विंग or like swing or long term or anything. I'll just gonna avoid and I am going to sit on cash. Why? Because it signals underlying weakness in the broader market. अगर ये ब्रॉडर मार्केट ही वीक है, जो कि निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, अगर वो ही वीक है, तो आपको स्टॉक में क्यों हाथ मारना है? स्टॉक में फिर आपका स्टॉप लॉस ही हिट होएगा, बिकॉज बिकॉज द फादर इज like already sleeping, like the father is already sleeping, then why do you want to wake him up and then like he'll just like slap the shit out of you? So you are going to completely avoid it. Think of it like this: small and mid cap stock are generally more volatile and sensitive to market sentiment. अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेकार है, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप अगर वो 50 ईएमए के नीचे है और आप कोई स्टॉक ट्रेड करते हो, तो वो बहुत वॉलेटाइल होगा, वो आपका साथ नहीं देगा, वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। When they struggle to stay about that key 50 EMA, it often means the overall risk appetite is low. उसका मतलब है कि सेफ रहना ज्यादा अच्छा है, जैसे कि नीचे लिखा है कि इट्स लाइक अ वार्निंग साइन द रिस्क ऑन इन्वायरमेंट इज क्वाइट देयर। ओके, तो आपको सेफ रहना है इन दिस सिचुएशन। आई प्रिफर टू स्टे ऑन द साइड लाइन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि जैसे ही मतलब तीनों इंडाइसेस निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप वो तीनों जैसे 50 ईएमए के नीचे आता है, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। मुझे ट्रेड नहीं करना है, मैं ना ही स्विंग से सेटिंग करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं स्टॉक को देखूंगा भी नहीं। ठीक है, इट्स अबाउट पिकिंग योर बैटल्स एंड वेटिंग फॉर दो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टू रीगेन द स्ट्रेंथ एंड रीच बैक अबाउट दैट क्रूशियल 50 ईएमए लेवल। तो मैं कब तक रुकूंगा? जब तक स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी 50 ईएमए लेवल के ऊपर नहीं आता है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, सो द real example of real time of today only, this is 8 January. Let's see what happened in a Nifty. So this is the Nifty chart. As you can see, it has completely taken the resistance of 50 EMA on like Monday, on like Friday or Monday,
and it's below the 50 EMA level. So what am I doing now? I'm not trading. I can never trade in this market. I don't want to lose the capital I have already earned. So I'm not trading. I am out of the market. Okay, so what is mid cap doing? Mid cap is also same. It is below the level of 50 EMA. I'm going to completely avoid swing trading. But what is small cap doing? Small cap is also below the 50 EMA level. So what are we going to do? Nothing. We are just going to sit on cash and save our capital. Okay. Look, like, I'm not going to pretend that the 50 EMA is some holy grail. I've been trading for like 2 3 years and I've seen the first hand that no indicator is perfect. So first of all, okay, for the first and foremost, I can tell you guys, I have been in the market for 3 to 4, like 2 to 4 years, somewhere around, and I can tell you this, that this indicator or whatever indicator, let it be RSI, MACD, it is a scam. The indicators are complete scam. But if but it cannot be scam if you know what the price action is. Know what the real price action is. If you know the price action, then indicator is not a scam. But if you don't know the price action, if you don't know the basic of chart, and then directly you are using the indicator, then the indicator is complete scam. Okay, so it's become my go-to, like the 50 MA. It's one of my favorite. It's simple and it's effective and it just makes sense to me. Okay, so it helps me see the bigger picture where the market's heading. So you can just like check like the 50 EMA in like weekly time frame, like monthly time frame, like daily time frame, like 1 hourly time frame. Okay, so it works in all. Yeah, so that's it for today. So the lesson for the market is you can never earn every day. You can never earn money every day in stock market. Whatever you do, whatever you're trying to do, whatever strategy you learn, even how costly as the strategy wouldn't be, you are not going to earn money every day in stock market. You have to figure out what the market condition is. So if the market condition is not for options buying, it's not for index trading, it's not for swing trading, or it's not for future trading, then you are not going to do anything in the market. You are just going to sit out. So if this market is only for swing trading, you are going to enter swing setup. If this market is only for index trading, you're going to enter index trading. Okay, so every style has every trading situation. And respect your stop loss. You have to respect your stop loss every time. Not respecting your stop loss, moving your stop loss like while you're trading, and just cutting out your stop loss. It's really bad and it's going to harm your portfolio or just blow you out. Okay, so respect the market. If you are respecting the market will respect you. And never stop learning. You can never stop learning in stock market. If you are like 40 years old in stock market, if you are 20 years old, or if you are just 2 years old in stock market, I am like pretty sure this is the only best thing you can learn, is that you never stop learning. Just learn, just watch some podcast, watch some like movie on it, and read some book. Whatever you want to do, you can do it. Just never stop learning. And remember, market is the king. You have to respect the king. You have to like bow down to your king, because if you don't, the market is going to take you down. Okay, so that's it for today. Let's see you tonight with the market analysis video.